وہ بہت تعصب سے اس کا سوجا ہوا سرخ پیر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے ڈھونڈ کر پین گے کریم اور درد کی گولی نکالی۔ تم کب میچور ہوگی؟ دیکھو، ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں، مگر ہمارے گھر کی لڑکیوں کو 7 پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ میں سب سے لڑ کر تمہیں پڑھا رہا ہوں کہ تم اپنی لائف بناؤ، خاندان کی آنے والی لڑکیوں کے لیے مثال بنو، لیکن مجھے یہ دوستی وغیرہ پسند نہیں ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے مرہم اس کے پیر پر لگا کر سیدھا ہوا اور ٹیبلٹ اس کی سمت بڑھائی، جسے سویرا نے چپ چاپ تھام لیا۔ اس نے خاموشی سے دوا کھاتی سویرا کو بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، خوبصورت بال ترتیب سے کٹے ہوئے ایک آبشار کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن اپنی یہ خوبصورتی صرف مجھ تک محدود رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے گلے میں پڑا اسٹالر اتار کر اسے لٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ اینا کی کلاس لینے کا موڈ بنا چکا تھا۔ باہر باغیچے میں اینا اور بریڈلی میز سجائے باتوں میں مصروف تھے جب شہریار ان کی طرف آیا۔ سر آئیے، آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں ہم، ڈنر شروع کریں؟ اینا خوش دلی سے مسکرائی۔ سویرا سسک کدھر ہے؟ بریڈلی نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہے، شہریار کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روکھے لہجے میں بولا۔ سر، اینا جو اس کا موڈ بھانپ چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس کی کلاس لیتا، وہی اسے مخاطب کر گئی۔ سر، آپ کی منگنی کی خوشی میں ہم میں سے کسی نے بھی لنچ تک نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی تقریب میں اور مس سویرا سب سے اچھے لگے، اس لیے ہم دونوں پارلر چلے گئے تھے۔ وہ فرفر رپورٹ دے رہی تھی۔ مس اینا، یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اس نے اینا کو خشمی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سر، بل تو آپ کے کارڈ سے پے کیا تھا نا، تو سوچا آپ کو بتا دوں۔ ویسے آپ نے نوٹ کیا مس سویرا از لکنگ سو گارجیس آفٹر دیٹ؟ وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہوا۔ مسٹر شہریار، آپ یہ فوڈ اوپر لے جائیں، سویرا صبح سے بھوکی ہے، اسے بھی کھلائیں اور خود بھی ٹرائی کریں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اور میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں، ویسے تکلف مت کریں، یہ سب آپ ہی کا مال ہے۔ بریڈلی مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ میں لوازمات رکھ کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے بولا۔ شہریار نے خاموشی سے پلیٹ تھامی اور کھڑا ہو گیا۔ ویسے برو، آپ کا ہاتھ بہت سخت ہے، بریڈلی نے شرارت سے کہا۔ کیوں، دوبارہ کھانے کا موڈ بن رہا ہے کیا؟ شہریار نے گھورا۔ بریڈلی نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شہریار ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ ہے اینا، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سیل فون پر نمبر لگاتی اینا سے مخاطب ہوا۔ شش! اینا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو مادام عروا، کیسی ہیں آپ؟ اینا، تم اس وقت؟ کیا مصیبت ہے؟ میں کلب میں ہوں، کیوں ڈسٹرب کر دیا ہے مجھے؟ عروا ڈانس فلور سے اتر کر نیچے آئی۔ مادام، مجھے آپ سے گیسٹ لسٹ چاہیے تھی، تو کیا تم صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں کیا گیسٹ لسٹ گلے میں لٹکا کر گھومتی رہتی ہوں؟ عروا بولی۔ وہ بری طرح سے تپ چکی تھی۔ مادام، سر شہریار خود گیسٹ لسٹ لکھوا رہے تھے، پھر مس سویرا کو چوٹ لگ گئی تو وہ انہیں اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ اب آپ خود دیکھیں، اتنی رات ہو گئی ہے، میں کب تک ان کے روم سے آنے کا ویٹ کروں گی، اس لیے سوچا آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ اینا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ شیری کدھر ہے؟ عروا کے تو سر پر لگی اور تلووں میں بجھی۔ میم، وہ ادھر فارم ہاؤس میں اپنے بیڈ روم میں ہیں، مس سویرا کے ساتھ۔ لائن کٹ چکی تھی۔ اینا نے فون بند کر کے بریڈلی کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اب وہ چڑیل شہریار کو فون کر کے ڈسٹرب کرے گی۔ بریڈلی ابھی بول ہی رہا تھا کہ گھاس پر سے کسی کے فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گرا ہوا فون اٹھایا جس پر عروا کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ سر جب چیئر پر بیٹھے تھے یہ فون ان کی پاکٹ سے گر گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا عروا میڈم پر تھوڑا نمک ہی چھڑک۔ اینا کھلکھلا کر ہنسی۔ سویٹ ہارٹ، تم نے تھوڑا نمک نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی مرچیں لگا دی ہیں، بریڈلی اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اب صبح مزہ آئے گا، دیکھنا یہ صبح ہوتے ہی یہاں پہنچ جائے گی۔ اینا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ شہریار سیڑھی کے پاس پڑا سویرا کا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ میں پلیٹ لیے اوپر روم میں آیا۔ دروازہ لاک کر کے بیگ ایک کونے میں ڈالتے ہوئے وہ بیڈ کی سمت آیا تو سویرا سو چکی تھی۔ اس نے پلیٹ میز پر رکھی اور لائٹ آف کر کے زیرو بلب جلا کر خود بھی صوفے پر سونے کو لیٹ گیا۔ اس کا 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا وجود کسی بھی صوفے پر فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر بار بار سویرا کا بریڈلی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستا ہوا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔
वो तंग आकर उठा और बेड पर जाकर तकिया सीधा करके लेट गया। बराबर में लेटा नाजुक वजूद उसकी तवज्जो खींच रहा था। उसने सवेरा की जानिब करवट ली। पिंक कुर्ती में बिना दुपट्टे के उसका खूबसूरत और दिलकश वजूद बेहद नुमाया नजर आ रहा था। गुलाबी रंगत पर घनी स्याह पलकों से सजा खूबसूरत चेहरा, उसके काले स्याह घने बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। उसकी मध्यम सांसों के ज़ेरो बम जो जवानी की सरहदों को छूता नाजुक सरापा शहरयार का होश उड़ा रहा था। वो एक दिलकश दोशीज़ा के रूप में उसके सामने थी। उसकी मिल्कियत थी, वो उस पर सारे हक रखता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे अपने मजबूत हिसार में लिया। सवेरा नींद में गुम थी जब उसे अपने वजूद पर किसी की नर्म गिरफ्त महसूस हुई। वो कसमसाई, इससे पहले कि मुकम्मल होश में आकर चीख मारती। शहरयार ने तेजी से उसके लबों पर हाथ रखा। मैं हूँ, वो उसके कान में बोला। वो तेजी से अपने हवास पर काबू पाते हुए उससे दूर होने लगी। आप इधर क्या कर रहे हैं? वो परेशान सी हुई। अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? उसने अबरू उचका कर पूछा। आप शायद भूल रहे हैं, मैं उर्वा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भर आई। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं किसके साथ हूँ। एंड नाउ नो मोर आर्ग्यूमेंट। उर्वा जी खफा होंगी। 2 रोज़ बाद आपकी उनसे मंगनी है, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो मुझे इल्ज़ाम देंगी। सवेरा का जवाब दे गया तो वो फूट फूट कर रो दी। उर्वा तुम्हारा मसला नहीं है, अंडरस्टैंड। और वैसे भी जब ये तय है कि तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर तुम्हें मेरे ही उसूलों पर चलना होगा। तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा, दैट्स फाइनल। वो सख्ती से बोला। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहती कि आप। वो सिसक उठी। सुनो लड़की, मुझे इस हद तक तुम खुद लाई हो। वैसे भी मैं अपनी बेजान चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो तुम तो मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो। मैं तुम पर मुकम्मल मिल्कियत का हक रखता हूँ। वो हतमी अंदाज में बोला। मैं ऐसा नहीं, मगर मैं ऐसा चाहता हूँ। उसने नरमी से उसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ किया। सुनो लड़की, मैं इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। बीवी हो, बीवी बनकर रहो। और अब बस। उर्वा पूरी रात शहरयार का फ़ोन मिलाती रही। उसका एक एक पल जैसे अंगारों पर कट रहा था। अगर रात में फार्म हाउस जाने वाला रास्ता बंद नहीं होता तो वो रात ही उधर आ चुकी होती। सुबह होते ही वो तेज़ी से लिबास तब्दील करके फार्म हाउस रवाना हो चुकी थी। सवेरा और शहरयार एक साथ, ये सोच ही उसका फिशारे खून बुलंद कर रही थी। वो बदले, इंतकाम और सवेरा को अजियत देने के तरीके सोच रही थी। शहरी, अगर तुमने मुझे चीट किया ना तो मैं तुम्हारी उस सो कॉल्ड देसी बीवी का वो हशर करूंगी कि सोचते सोचते उसका दिमाग फटने लगा था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। वो एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाते हुए गाड़ी दौड़ा रही थी। न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, लेकिन फजर के वक्त मामूल के मुताबिक उसकी आंख खुल चुकी थी। वो उस वक्त भी शहरयार के साथ ही थी। वो पुरसकून गहरी नींद सो रहा था। वो आहिस्तगी से उठते हुए फ्रेश होने चली गई। नहा धोकर वज़ू करने के बाद वो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे में आई। बड़ी मुश्किल से कमरे में जाए नमाज बरामद करके वो नमाज की नीयत बांध चुकी थी। नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसका दिमाग खाली था, लब साकित थे। अब शायद कोई दुआ असर करने वाली नहीं थी। वो दोनों हाथ बारगाहे इलाही में फैलाए, बस आंसू ही तो बहा रही थी। उसने जिंदगी के ऐसे रुख के बारे में कभी नहीं सोचा था। शहरयार उसके सर का साईं था, लेकिन वो कई बार उसकी ज़ात की नफ़ी कर चुका था। और रात भी उसने अपने रवैये से अच्छी तरह वाज़े कर दिया कि वो उसके लिए बस एक मिल्कियत है। ये दिल का सौदा कम से कम उसकी नज़र में हरगिज़ नहीं था। या अल्लाह, मैंने अपना हर मामला तुझ पर छोड़ दिया। वो सिसक उठी। शहरयार ने नींद में सवेरा को अपने करीब करना चाहा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। उसकी आंखें झट से खुल गई। उसकी आंखों के आगे रात के बहुत से मनाजिर घूम गए। ये कोई लम्हाती फैसला नहीं था। वो बहुत सोच समझ कर सवेरा की जानिब बढ़ा था। अभी वो तकिए से टेक लगाकर उठा ही था कि उसकी नज़र के सामने जाए नमाज पर दोनों हाथ उठाए साकित बैठी सवेरा पर पड़ी। वो आराम से उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। सवेरा की शिद्दत गिरिया से सुर्ख आंखें और उन आंखों से रवानी से बहते हुए आंसू
कुछ भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं था। सवेरा जाए नमाज समेट कर उठी ही थी कि शहरयार ने उसे आवाज़ दी, सुनो लड़की, इधर आओ। वो चुपचाप सर झुकाई खड़ी रही। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए। क्या कानों ने काम करना छोड़ दिया है? इधर आओ, वो तंजिया अंदाज में बोला। सवेरा ना चाहते हुए भी मरे मरे कदमों से चलती उसके पास आई। वो उसे बगौर देखते हुए बिस्तर से उतरा और उसके नज़दीक पहुंचकर नमाज के स्टाइल में बंधा दुपट्टा खोल दिया, जिससे उसके गीले खुशबूदार बाल एक झटके से उसके कंधों पर फैल गए। ये रोना धोना, ये बिला वजह की अफसुर्दगी, क्या है ये? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला। वो लरस कर पीछे हुई। तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम, कोई इंसान ना हो। वो उसे बावर करवा रहा था। अब तुम्हारा पैर कैसा है? उसने किसी बेजान गुड़िया की तरह साकित खड़ी सवेरा से पूछा। जी ठीक है, वो नागवारी को दबाते हुए आहिस्तगी से बोली। ओके, तो जाओ नीचे, दाएं हाथ पर किचन है, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी तैयार करो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सवेरा एक लम्हे के लिए एक हिसार में कैद हुई थी। शहरयार ने उसकी पेशानी पर नरमी से अपना लम्स छोड़ा। इससे उसे इज्जत का एहसास हुआ था, एक मान, एक अकीदत का एहसास हुआ था। ऐसे तो सालों से किसी ने उसे प्यार नहीं किया था। जब बाबा जिंदा थे तो तब वो रोज़ उसकी पेशानी चूम कर उसे दुआ दिया करते थे। ओफ, वो झुरझुरी लेकर उस लम्हे की कैद से आज़ाद हुई। सर पर दुपट्टा ओढ़ती हुई नीचे किचन की तलाश में चली गई। 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। बड़ा सा आहिनी दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर माली पौधों को पानी देने में मसरूफ़ था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। बड़े से लाउंज में सोफे पर ऐना सो रही थी और नीचे कुशन रखकर कोई लड़का सोया हुआ था। वो नखुवत से उन दोनों को देखती हुई आगे बढ़ी। अभी उसने पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि उसे किचन से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो ऊपर जाने का इरादा तर्क करके किचन की तरफ बढ़ी। सामने ही नहाई धोई, गीले बाल पुश्त पर डाले सवेरा बड़े इन्हेमाक से कॉफ़ी बना रही थी। वो दबे कदमों से चलती हुई सवेरा के पास आई और उसके बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में जकड़कर एक ज़ोरदार झटका दिया। हाय अल्लाह! सवेरा के मुंह से फलक शगाफ चीख निकली। शहरयार के वॉशरूम में जाने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई थी। सामने ही दाहिनी जानिब काफ़ी कुशादा इटालियन तर्ज का बना किचन था। वो अंदर दाखिल हुई तो पूरा किचन साफ सुथरा सा नज़र आया। बड़े से स्लैब पर कॉफ़ी मेकर, टोस्टर और हर तरह की जदीद मशीनरी मौजूद थी। उसने 1-2 दराजें खोलकर कॉफ़ी का सामान बरामद किया और पानी उबलने रखकर मग में कॉफ़ी फेंटने लगी। रात शहरयार के रवैये ने उसे बहुत हर्ट किया, लेकिन अभी वो उस लम्हे के हिसार में थी जब शहरयार ने प्यार से, इज्जत से उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा था। उसने मग रखकर धीरे से अपनी पेशानी को छुआ। जो भी था, शहरयार में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। वो तो वैसे भी ज़बरदस्ती उसके गले पड़ी थी, और फिर मुफ्त में गले पड़ी अनचाही जिम्मेदारी कौन निभाता है। दिल में शहरयार से शदीद डर और खौफ रखने के बावजूद वो उसकी मशकूर थी कि वो उसे उस जिंदान से निकाल लाया था। पढ़ने का करियर बनाने का मौका दे रहा था। मगर बहुत से सवाल उसके जहन में उठ रहे थे। वो एक मशरकी लड़की थी जो बचपन से अपने साथ शहरयार का नाम सुनते हुए जवान हुई थी, और अब इस सब के बाद क्या वाकई शहरयार दूसरी शादी करेंगे? ये सोच ही उसे लरजने पर मजबूर कर रही थी। अभी वो कॉफ़ी मग में डाल ही रही थी जब किसी ने बेदर्दी से उसके बाल पकड़े। डर और तकलीफ की शिद्दत से उसके हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। सवेरा की चीख सुनते ही एक जोरदार झटका देते हुए उर्वा ने उसके बाल अपनी मुट्ठी से बड़ी बेरहमी से नोचने के बाद आज़ाद कर दिए। शहरयार फ्रेश होकर ऑफिस जाने को तैयार हो चुका था। अब वो अपना सेल फोन पूरे कमरे में तलाश कर रहा था। फ़ोन की तलाश में नाकाम होने के बाद वो बेडरूम से बाहर निकला। उसका रुख किचन की तरफ था। वो नपे तुले कदम उठाता किचन के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से आती उर्वा की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसके माथे पर बल पड़ने शुरू हो चुके थे। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारी नज़र हमेशा से ही मेरे शहरी पर थी। बोलो, जवाब दो, किसकी इजाज़त से तुम इधर आई? किसकी इजाज़त से तुम शहरी के कमरे में रुकी? वो गुर्राई।
वो जवाब देना ही चाहती थी कि उर्वा ने करीब आकर उसका चेहरा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में जकड़ा। मेरा शहरी तो तुम्हें घास तक नहीं डालता। यू ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और शहरी के बीच में आने की? वो अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए बोली। ये क्या हो रहा है? शहरयार यकदम से कहता हुआ उर्वा के सामने आया और उसकी गिरफ्त से सवेरा का चेहरा छुड़वाया। ये तो तुम बताओगे कि इधर हो क्या रहा है। तुमने मुझे चीट किया है शहरी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो शहरयार के सीने पर जोर से हाथ मारते हुए बोली। वो नरमी से उर्वा के हाथ थामकर गर्दन मोड़ते हुए फक खड़ी सवेरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम इधर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। वो सवेरा की नम आंखों को घूरते हुए बोला। सवेरा तेजी से अपने आंसुओं को रोकते हुए किचन से बाहर निकल गई। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? औरवा ने जख्मी लहजे में शहरयार से सवाल किया, जो सवेरा को जाते हुए देख रहा था। तुम इधर क्यों आई हो? और तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करती। वो खुश्क लहजे में बोला। ओके, तो तुम बताओ, वो लड़की रात भर तुम्हारे रूम में क्यों थी? उर्वा चीखी। वो बीवी है मेरी, और जाहिर है बीवी अपने शोहर के साथ रहती है। वो लापरवाही से कहता हुआ किचन काउंटर पर रखी कॉफ़ी मग में उंडेल कर बाहर की तरफ मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? उर्वा ने पीछे से आवाज़ दी। ऑफिस। बगैर पलटे वो जवाब देता हुआ आगे बढ़ गया। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वो उसके सामने आन खड़ी हुई। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। वो तल्ख हुआ। जो धोखा तुमने मुझे दिया है, इसके बाद तुम अपने आप को, अपने किरदार को कैसे जस्टिफाई करोगे? बोलो। वो फट पड़ी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम साथ चलो, रास्ते में बात करते हैं। वो संजीदगी से बोला। उर्वा इस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ कदम उठाती बाहर निकल गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर शहरयार ने उर्वा को बैठने का इशारा किया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर सनग्लासेस आंखों पर लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी मेन सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी के अंदर दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद सन्नाटा छाया हुआ था।